کا موقف جو ہے وہ قرآن حدیث اللہ اور اللہ کے رسول کو لے کر کے کیا ہے؟ پکا ہے سر، کیونکہ میں دیکھتا ہوں جیسے اسلام پھیل رہا ہے تیزی سے، پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور جس عقیدہ والے اس میں ہیں، ایسے ایسے سچے لوگ ہیں، تو وہ سب دیکھ کے میں پھر بک نہیں دیکھتا ہوں، میں گراؤنڈ پر ہی دیکھ کے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، بک تو دیکھتا ہوں۔ اچھا دیکھیے، یہ جو آپ نے ابھی آرگیومنٹ دیا ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کے سچا ہونے کا، کہ تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اور لوگ تیزی سے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور صاف لوگ بھی سر اور اس میں ہیں، صاف لوگ، یہ بھی ایڈ کر لیجئے۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ اس میں جتنا بھی چاہیں ایڈ کر لیں، مگر پردہ ہے سر، بات یہ ہے عزت ہے۔ اویس بھائی لیٹ می کمپلیٹ۔ اویس بھائی، بات ایسی ہے یس کہ سر۔ یہ ایک ویلڈ آرگیومنٹ نہیں ہے، وہ اس لیے ویلڈ آرگیومنٹ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ باعث ہیں اور آپ صرف ایک سائڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو تب کہ تو آپ کے لیے یہ آرگیومنٹ اسٹینڈ کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ ان باعث ہیں اور آپ کھلی آنکھوں سے حقیقت کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ اسٹینڈ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے سامنے سے کہ جتنا لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں اس سے اتنے ہی لوگ یا اس سے زیادہ یا اس سے کم لوگ اسلام کو چھوڑ بھی رہے ہیں، ترک بھی کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر لاجکلی اگر آپ سوچیں تو ایک آدمی کا اسلام قبول کرنا اتنا زیادہ امپیکٹ فل نہیں ہے جتنا ایک آدمی کا اسلام چھوڑنا۔ اور اس کا کارن کیا ہے؟ اس کا کارن یہ ہوگا صاحب کہ جب ایک آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مکمل اسلام کو اسٹڈی کرنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد قبول کرے، وہ کسی سے انفلوئنس ہو کے بھی اسلام کو قبول کر سکتا ہے، اپنی کسی غرض کے چلتے بھی اسلام کو قبول کر سکتا ہے، یا اپنی لا علمی، اپنی کم عقلی کی وجہ سے بھی اسلام کو قبول کر سکتا ہے۔ مگر اسلام کو چھوڑنے کا صرف اور صرف ایک سنگل کرائیٹیریا یہ ہے کہ پہلے آپ مذہب اسلام کو پڑھیں، سمجھیں، جانیں اور اس کو غلط سمجھ کر کے تب چھوڑیں۔ اس لیے میرے بھائی، اسلام کو قبول کرنا اتنا امپیکٹ فل نہیں ہے جتنا اسلام کو چھوڑنا امپیکٹ فل ہے۔ سر بات آپ جی بھی اچھی بول رہے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو سر کہہ سکتا ہوں؟ جی 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 بولیے سر۔ سر سب سے میں پہلے مجھے بول رہا ہوں، مجھے یہ دیکھیے اسلام میں آپ اویس جو بھائی، سر اویس کوشچن بھائی، اٹھاتے ہیں۔ اویس بھائی، وہ اسلام جی میں لوگ جو داخل ہو رہے ہیں، نئے لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا اس میں تعداد شیعوں کی زیادہ ہے یا سنی کی؟ یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد وہ شیعہ سنی بن کی گئے یا سنی بن گئے؟ 90%، تو پھر 85% سنی ہے، 50%، 15% سیاح ہے۔ لیکن تیزی سے تو سیاح بھی پھیل رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ابھی مجاڑ وجاڑ والا سلسلہ ہے نا، وہ سب وجہ سے۔ ہاں اس میں نے پرابلم ایک تو آپ کو بتا دی، دوسری پرابلم یہ ہے اویس صاحب کہ جی لوگوں سر۔ کا اسلام سے انفلوئنس ہونا یا لوگوں کا اسلام قبول کرنا، اس سے اللہ اور اللہ کا رسول اچھا اور سچا ثابت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول اچھا اور سچا تبھی ثابت ہو سکتا ہے لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے جب لوگ اسلام کو پڑھ کر، سمجھ کر اور پوری طریقے سے جان کر قبول کریں، جب وہ اللہ کو جان کر اور اللہ کے رسول کی زندگی کو جان کر قبول کریں۔ مگر ایسا تو ہو نہیں رہا ہے۔ جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اس میں سے 90% لوگوں کو پروفٹ محمد صاحب کی اصل زندگی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اسلام کے اصل حکم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو مکمل طریقے سے اپنی زبان میں سمجھ کر کے پڑھا ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے اسلام قبول کرنے سے دیکھیے اللہ اور اللہ کا رسول اچھا اور سچا ثابت نہیں ہوتا۔ اس کو اگر آپ اچھا اور سچا آپ کو ثابت کرنا ہے تو وہ ہو سکتا ہے قرآن اور حدیث سے۔ اور میں یہاں پر ایز اے ایکس مسلم اویس صاحب تمام دنیا کے مسلمانوں کو میں چیلنج تو نہیں کہوں گا، چیلنج تھوڑا ہارش ورڈ ہو جاتا ہے، تھوڑا برا لگتا ہے، مگر میں تمام دنیا کے مسلمانوں آپ سے یہ سمجھانا مطالبہ چاہتے ہیں؟ کرتا ہوں، جی میں مطالبہ کرتا ہوں تمام دنیا کے مسلمانوں سے کہ اگر کوئی بھی ایک مسلمان مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اچھا اور سچا ثابت کر دے تو میری بڑی رہنمائی ہو جائے گی اور تمام دنیا کے لوگوں کی، اور جو مجھے سننے والے یا میرے جیسے لوگوں کو سننے والے لوگ ہیں ان کی بھی بڑی مدد ہو جائے گی اگر کوئی مسلمان آئے اور قرآن حدیث سے اللہ اور اللہ کے رسول کو اچھا سچا ثابت کر دے۔ وہ کوئی کر نہیں پا رہا ہے۔ سر آپ لوگ دن رات بولتے اسلام میں ہمارے نبی لونڈی کے ساتھ یہ کیے، زیادہ سے زیادہ شادی ہوتا، آپ سب کا بلیم ہے، لیکن آپ سر دیکھیے کہ اسی قرآن اور حدیث کو پڑھ کے آج دنیا میں سب سے اگر پردہ اور سب سے اگر عزت میں اگر رہنے والی تو مسلم عورتیں ہیں۔
आप सर देख लीजिए लव मेरे मैरिज और भाई अरेंज मेरे मैरिज भाई के। जहां तक आप पर्दे की बात कर रहे हैं, तो जब आप कुरान को पढ़ेंगे ना और पर्दे की आयत को आप पढ़ेंगे, तो तब आपको समझ में आएगा कि किसी औरत के लिए पर्दा आपके नजर में उसकी सर वो अच्छा उसकी है कि गलत है? एक सेकंड, मैं आप जवाब क्या दे रहा हूँ कहते हैं? आपको। नहीं, मेरी नजर में बुरा है और बदतरीन है, बुरा नहीं है, बदतरीन है। अच्छा, बदतरीन यानी क्यों आपकी है? नजर में वेस्टर्न वेस्टर्न ड्रेस अच्छा है? नहीं भाई, आप अपनी तरफ से ना बनाएं चीजें, मेरा जवाब मुकम्मल सुन लें, आपको जवाब मिल जाएगा कि क्यों बुरा है। मेरी नजर में वो बदतरीन इसलिए है क्योंकि जब आप सूरह अहजाब की वो आयत पढ़ते हैं जिसमें पर्दे का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि ए नबी, अपनी बीवियों को और तमाम मुसलमानों को कह दीजिए कि जब वो अपने घरों से बाहर निकला करें तो अपने सरों पर चादरें लटका लिया करें ताकि पहचानी ना जाएं और सताई ना जाएं। तो देखिए मेरे भाई, जहां पर्दे का हुक्म आ रहा है वहां मीजान मदीना कायम है, यानी कि रियासत मदीना कायम है और कानून जो है शरीयत का नाफिज है। वहां पर अगर औरतें बाहर निकल रही हैं बगैर पर्दे के और उनको पहचान करके छेड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, तो ये काम कौन कर रहा है? काफिर की मुसलमान? क्योंकि काफिर की तो इतनी जरूरत नहीं है कि मदीना में जहां मुसलमानों की रियासत कायम है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून कायम है, वहां कोई काफिर किसी मुसलमान औरत को छेड़ दे तो कौन छेड़ रहा था? मुसलमान। तो आप ये अरे देखिए कि मुसलमान, एक सेकंड, आपकी बहन मुसलमान दूध बेटी, के धूले थोड़ी होते हैं सर, देखिए जो अवैध भाई, अगर हाँ वैसे ही तो रहेगी। अवैध भाई कौन था वो दूध का दूल्हा? वो उमर था जिसको मुनाफिक आप रहा होगा। दूध का दूल्हा समझते हैं। हाँ। वो उमर था जो बैठ करके अपनी माँ को छेड़ रहा है, जो कह रहा है ए सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया। और कब 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 कह रहा है? जब वो अल मनासी के मैदान में वो नेचर कॉल के लिए जा रही है, वो पेशाब पोटी करने के लिए वो जा रही हैं, तब उनको रास्ते में रोक करके छेड़ रहा है उमर। कहता है ए सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया। तो आप ये देखें कि वो कौन से मुसलमान थे भाई। और इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी बहन या बेटी, चले छोड़े, आपकी मिसाल की दूं, मैं भी नहीं देता हूं। मेरी बहन और मेरी बेटी घर से बाहर निकलती है और उनको मेरे नहीं, मेरी मोहल्ले बहन के, और मेरी बेटी भी पर्दे में रहती है, इस्लामिक है भाई। ठीक है भाई, मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं मेरी बहन और मेरी बेटी घर से बाहर निकलती है या मेरी बीवी घर से बाहर निकलती है और मोहल्ले के चार जी। छिछोरे लोग खड़े होकर के उनको छेड़ते हैं, तो मैं ये कहता हाँ। हूं अपनी बहन बेटियों को कि तुम पर्दा करके जाया करो ताकि वो छिछोरे तुमको ना छेड़े। तो आप ये बताइए कि मैंने अपनी औरतों को इज्जत और वकार दी कि मैंने अपनी औरतों को गुलाम बना दिया और उनको बांध करके रख दिया? चाहिए तो ये था कि मैं उन छिछोरे लोगों का जाकर के मुंह तोड़ देता जो मेरी बहन बेटियों को छेड़ रहे थे, मगर मैंने वो ना करके मैंने अपनी बहन बेटियों को टेंट में डाल दिया कि तुम टेंट पर्दा करके जाओगी। ये आप इसको इज्जत और वकार समझते हैं? ये कौन सी इज्जत और वकार की बात है भाई? और मैं कहता हूं कि उस आदमी की क्या इज्जत और वकार है जो अपनी बहन बेटी और बीवी को छेड़ने वाले का मुंह नहीं तोड़ सकता, उल्टा अपनी बहन बीवियों को कहता है कि तुम पर्दे में जाओ। नहीं, हम मुसलमान तोड़ते भी है सर पकड़ के। अरे भाई, आप तोड़ते हैं या फोड़ते हैं? आपके नबी ने तोड़ा? जब सौदा को छेड़ा था उमर ने, कायदे से तो ये चाहिए था कि आपके नबी को उमर का मुंह तोड़ देना चाहिए था कि तूने मेरी बीवी को और अपनी मां को, उम्मे हातुल मोमिनीन, तमाम मुसलमानों की मां को तूने कैसे छेड़ा? मगर वो ना करके नबी ने अपने हाथ में जो गोश्त था वो चबाते हुए कह दिया कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया है तुमको कि तुम आज के बाद जब भी बाहर जाओगी पर्दे में जाओगी, उमर को कोई सजा नहीं है। हाँ, आप इसको ये इज्जत वकार बात कहते हैं सर। अवैध साहब? लेकिन उसी कुरान हदीस को पढ़ के तो सर आज सबसे अगर कम अगर किसी कौम की लड़की आज बाहर जाती है गलत काम करती है, वो मुस्लिम है भाई। आप, मैं देखता हूँ मुस्लिम एरिया से जहाँ निकलता हूँ बेहयाई और वाहियात माहौल फैला हुआ है। आप मेरे खुद भाई देखोगे। मेरे भाई सुनो, मेरे भाई, पर्दे की जहां तक आप इसलिए बात मैं कर और रहे हो, इस्लामिक पसंद करता अपने हूँ। सर के ऊपर, एक मिनट, अपने सर के ऊपर चादर लटका लेना एक एडिशनल गारमेंट है। अगर वो चादर किसी ने अपने सर के ऊपर नहीं लटकाई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो महिला, वो खातून नंगी घूम रही है। वो नंगी नहीं घूम रही है, वो अपने पूरे कपड़े हाँ, पहन ये करके बात घूम है। रही है। जी जी। क्योंकि उससे अगली आयत जब आप पढ़ोगे, उससे अगली आयत में यह भी कहा गया है कि जो औरत हैज से नाउम्मीद हो चुकी है, यानी जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गया है, वो चाहे तो वो अपना सर और अपना सीना खोल करके रखें। तो अब क्या आप ये मानोगे कि उनको पर्दा करने का हुक्म नहीं है?
जो बुजुर्ग हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, तो अब वो कपड़े उतार करके नंगी घूम रही हैं। नंगी घूमने का हुक्म है उनको? नहीं, क्योंकि उसका 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 ताल्लुक जो है वो उनके बदन के कपड़ों से है ही नहीं उस पर्दे का, वो तो एडिशनल कपड़ा है जो सर पे अलग से डालना है। तो आप एकदम से क्या करते हैं मुसलमान लोग, आप ये करते हैं कि जिसने पर्दा नहीं किया या जिसके पास पर्दा नहीं है, आप फौरन उसको नंगी होने का टैग दे देंगे कि तो नंगी है। ऐसा नहीं है भाई। फिर भरोसा भी तो उससे उठ जाता है ना सर। कोई अब वेस्टर्न पहन के घूम रही है यार तो आप एक उससे बात बताओ, अच्छा। आपकी बेटी स्कूल कॉलेज में जा रही है, जहां पर्दा और जी हिजाब का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको अपना जी एडमिशन कार्ड भी दिखाना है, उसको अपना जी हॉल टिकट भी दिखाना है, उसको अपना चेहरा भी दिखा करके शिनाख्त करवानी है कि एग्जाम देने आपकी बेटी ही गई है, आपकी बहन ही गई है, कोई और नहीं आ गया उसकी जगह। तो जी। अब वहां पर अगर कोई मन चला या कोई स्कूल टीचर उसके साथ छेड़छाड़ करे, तो आप इसमें गलती अपनी बहन बेटी की मानोगे कि उस मनचले की मानोगे? मन चले। तो फिर कूटना तो उमर को चाहिए था। ये कौन सा तरीका था कि अपनी बीवियों को पर्दे में डलवा दिया? आप उमर की बात करें, यहाँ पे औरंगजेब बादशाह ही इतना खतरनाक सजा दिया था वो भाई मैं उमर की, एक सेकंड भाई, मैं रेपिस्ट उमर का। की तो बात उमर इसलिए का कर रहा हूँ, उमर रजी अल्लाह अन्हु अवैध का भाई, बात तो अवैध बहुत भाई, मैं उमर बड़ा की है। बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वारदात अंजाम उमर ने ही दी है। हदीसों में मौजूद है, कुरान में मौजूद है, तफसीर में मौजूद है। अगर उमर की जगह किसी और ने दी होती तो मैं उसकी बात करता। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है उमर के साथ। बट उमर तो के आप टाइम लोग रजील्लाहु नहीं, अन्हु क्या ओवैस था, 12 साल में इतना इंसाफ हुआ है सर। आप पढ़िए ना, यार, इंग्लैंड के मैं लोग यार मेरी तारीख बात लिखे सुनो, हैं। यार मेरी बात सुनो, यार मेरी बात सुनो। आप अलग चीजों पे क्यों चले जाते हो? जब आपने एक टॉपिक पकड़ा हुआ है, पर्दे की आप बात कर रहे हैं, मैं पर्दे पे आपसे बात कर, अब आप ये कहने लगे कि अगर उसने हमारी माँ को या तमाम मुसलमानों की माँ को या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को छेड़ा तो छेड़ा, बाद में काम भी तो अच्छे किए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया सर के छेड़ा 50 कहाँ अच्छे है सर, काम करो। दिखाइए ना छेड़ा कहाँ है। मैं भी वो पढ़ा 4913 है मेरा भाई बुखारी का। जब कोई औरत रात के वक्त नेचर कॉल के लिए जा रही है आपके घर की, हाँ और छुप छुपा करके जा रही है, और मैं उसे 10 लोगों में बैठ करके कह दूं, ए जाने वाली, मैंने तुझे पहचान लिया, तू मोहम्मद की बीवी है ना, तो ये छेड़ना नहीं होगा तो क्या हो गया भाई? सर बोला है, वो एहतियात किया है सर। वो क्या है? देखा थोड़ी है, देख कर वो कौन हंसे कौन थोड़ी, वो तो अपनी माँ बोला को है। 10 लोगों में, अरे भाई एक बात सुनो, अपनी माँ को 10 लोगों के अंदर बैठ करके ये कौन कहेगा कि मैंने तुझे पहचान लिया, तू टट्टी फिरने जा रही है? कौन कहेगा? ये कौन सी एहतियात है भाई? तो मन चले जब मेरे बहन को छेड़ेगा तो मैं तो बोलूंगा ना उसको, तू मत हाँ जा तो या हट उसको जा, बोलोगे ना, देख अपनी बहन लिया को थोड़ा ना पहचान टेंट लिया। में डाल दोगे। अपनी बहन को टेंट में नहीं डालोगे ना, उसको बोलोगे ना, आपके नबी ने अपनी बीवियों को टेंट में डाल दिया, उस मनचले को नहीं बोला। और आप इसको अजमत का बाइस समझते हो, आप इसे इज्जत का बाइस समझते हो इस बिल्कुल पर्दे को। बिल्कुल। भाई मैं ये नहीं चाहता पर्दा, कि निकले। भाई ये पर्दा मुसलमान औरतों को मुसलमान मर्दों से बचाने के लिए ही आया है। काफिर नहीं छेड़ रहे थे आपकी मुसलमान माँ बहनों को। हाँ तो मैं कब बोला कि वो लोग एकदम सही थे? मैं तो बोला जो करते हैं वो गलत है। माशाल्लाह, तो फिर उनको वो माफ छेड़, करने वाला और उनसे बदला ना लेने वाला भी गलत ही है हमारी नजर में भाई। हाँ गलत है। तो बस ठीक है, माशाल्लाह, आपने तो प्रॉफिट रसूलुल्लाह को गलत मान लिया, बचा क्या? तो किताब के हिसाब से ना, किताब में हर बात थोड़ी सही होती है, और किस रिलीजन की पूरी बात में हर कुछ सही है। पढ़िएगा तो आप किसी इंसान का पढ़िएगा आप बायोग्राफी, में कुछ ना अपने कुछ गलत लिखा ही प्रॉफिट होगा। मोहम्मद, सर आप अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने मालिक व खालिक अल्लाह तबारक व ताला को किताबों से ही जानते हैं। दोनों से जाती तौर पे ताल्लुक नहीं है आपका। आप ये अगर किताबों को छोड़ दें तो आप ये भी नहीं बता सकते कि प्रॉफिट मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ही आपके नबी हैं, क्योंकि वो किताबों से ही आपको पता चलता है। तो अगर आप किताबों को ही तर्क कर देंगे तो आपके पास इस बात का सबूत ही क्या बचेगा कि आपके प्रॉफिट मोहम्मद थे भी या नहीं? इस हदीस को मैं दीवार पे मारूंगा क्योंकि ये कुरान से टकरा रही है सर। हाँ, कौन सी कुरान की आयत से टकरा दी है, प्लीज बता दीजिए। सूरह नूर, उसमें 18 आयत किनके कहने के बाद उतरा था? क्या उतरा था किन के कहने के बाद? हजरत उमर के कहने के बाद सूरह नूर का 18 आयत। हाँ, तो इसमें 18 इसमें आयत। एक मिनट, तो टकरा कहाँ रही है? तो टकरा कहाँ रही है? इस शख्स से ऐसा उम्मीद किया ही नहीं जा सकता, ये हदीस गलत हो अरे भाई, जब ये। नबी से उसने कई बार रिक्वेस्ट किया कि पर्दे की आयत दो, और पर्दे की आयत अल्लाह ने नाजिल नहीं करी,
تو आखिर में उसने प्रॉफिट मोहम्मद की बीवी को छेड़ दिया कि ऐसे नहीं नाजिल करेगा तो ऐसे करेगा। जब छेड़ा गया तो उसी दिन आयत नाजिल हो गई। तो इससे आप क्या समझते हैं? अच्छा, इस पे आयत भी नाजिल हुई? बिल्कुल, हदीसों में लिखा हुआ है, उसी दिन नाजिल हुई है। नबी बैठ करके जो है वो बकरे का गोश्त जो है चबा रहे, सॉरी भेड़ का या दुम्बे का सब कुछ गोश्त था वो खा रहे थे बैठ करके आयशा के घर में। सौदा रोते हुए पहुंची और जाकर के कहा कि ए नबी, आपके साहबा ने मुझे यूं और यूं कहा। तो नबी जो है वो कांपने लगे और तभी वही नाजिल हुई और आयत आ गई सूरह अहज़ाब की कि ए नबी फरमा दीजिए अपनी बीवियों से, तमाम मुसलमान औरतों से, जब घर से बाहर जाया करें तो अपने सरों पर चादर लटका लिया करें। अच्छा, सौदा रो के कही थी, ये वाला हदीस हमको दिखाइए तो स्क्रीन जी पे। बिल्कुल रो के कही, बिल्कुल दिखा रो के देते हैं। कही। हाँ बिल्कुल रोते हुए गई है, बिल्कुल दिखा देते हैं सर, हाँ 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 हाँ। बिल्कुल दिखा देते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये अंदाज हमें पसंद है, लोग कहें कि हमें रेफरेंस दो, हम देते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 5237 और 6240, 4797, 4795, ये तीनों हदीसें पढ़ लें, तीनों एक ही कॉन्टेक्स्ट में है और आपको पता चल जाएगा। खोल दीजिए सर आप ही एक उसमें से, उसमें रो के कही, ये वाला मुझे देखना है। वो तो कही होगी कि ऐसा ऐसा वाकया, रो के कही और तंज किया, वो मुझे देखना है। तो आपको क्योंकि मुझे भी पता है, आपका क्या कहना है कि जिस औरत को भरे बाजार छेड़ा गया है वो खुश होते हुए गई होगी नबी के पास? छेड़ा कहाँ गया, वो तनकीद किया गया और अच्छा तनकीद किया है। नहीं, मैं किसी को बोलूंगा तुम पर्दे में रहो या तुम अच्छी रहो, रिलेशनशिप में नहीं जाओ, ये कहना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है कहना। भाई पर्दे में रहो कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाजार में कहना था ना, जहाँ कपड़े खरीदने जाते, टॉयलेट को जाते, जहाँ कपड़े उठाकर बैठा जाता, वहाँ क्यों छेड़े? नहीं, इस हिसाब से तो उमर को ज्यादा अकल थी रसूल अल्लाह से, क्योंकि रसूल अल्लाह ने तो उन्हें भेज दी, वो तो भेजते थे उन्हें रोज इसी तरह। वो तो उमर में अकल ज्यादा थी फिर इस हिसाब से तो। मोहब्बत था उमर से, उमर की वजह से ये चीज लागू कर दिया गया, गलत इसमें क्या था? हजरत उमर ने बहुत काम तो किया है, बहुत ये मदद आइडिया किया है। रसूल अल्लाह को क्यों नहीं आया? नहीं आया कुछ, रसूल अल्लाह को कुछ क्यों नहीं आया? वफादारों का कुछ, अरे भाई कुछ करने के कुछ ना कुछ तो जरिया चाहिए ना, बिना जरिया के थोड़ी होती है। इसमें ये अच्छा, जरिया बन गया, कुछ में उस्मान जरिया बन गया। चलें ठीक है, ये जरिया बन गया। आप मुझे एक और बात ये बताओ, सुनिए सुनिए आप पर्दे की सुनिए बात कर रहे हो, सो आप सुनिए, एक सेकंड सुनिए, बस एक सेकंड। क्या आपको, जी आप देखते नहीं हो मुआशरे में कि कोई बुरके में है चाहे किसी भी है, किसी भी हालत में है, जो छेड़ने वाले लोग होते हैं ना, गंदी नजर वाले लोग, वो उनको हर तरह गंदी ही नजर से देखते हैं और उनको छेड़ते हैं। इसमें औरत का कोई मसला ही नहीं है, ये मसला मर्दों का है। जो गलत मर्द होते हैं वो छेड़ते ही हैं भाई, वो चाहे बुरके में है चाहे उसको 10 बुरके पहना लो तुम, वो उसके शरीर छेड़ना को किसको देखते हैं, कहता वो है? एक्सरे निकाल लेते हैं लोग। जी जी, इसलिए तो एक्सरे अब आया ना, तो 1400 ये साल से फॉल्ट थोड़ी हुआ मर्दों है। में होता है और औरत में कोई फॉल्ट नहीं होता है, ये फॉल्ट मर्दों में होता है। जो गंदी नजर से अच्छा देखेगा वो चाहे बुर्का पहना लो, अच्छा चाहे उसको कुछ भी अच्छा, पहना लो। हाँ, यानी आप आपके नजर में कुछ चलिए ये मर्दों का मैं फॉल्ट है। आपको 1 बाय 1 3 रेफरेंस दे देता हूँ प्यारे भाई ओवैस भाई, आप ध्यान से दीजिएगा, हाँ, पूरी कहानी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। पहला उर्दू रेफरेंस है में सही खोल दीजिए बुखारी की ना। हदीस नंबर 6240, इसमें लिखा हुआ है, आयशा से रिवायत है, द वाइफ ऑफ द उर्दू में सर प्रॉफिट। खोलिए ना। भाई उर्दू में खोल लेते हैं, ये लो, हाँ ये लीजिए। जी सर। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवाज मोहतरात का पर्दा करवाएं। क्या कहा करते थे कि भाई इनको पर्दे में रखो, पर्दे यस पर्दे यस। से बाहर ना भेजो इनको। तो ये रिक्वेस्ट कौन किया करते थे बार बार? उमर किया करते थे, जो कि मैंने आपको बात बोली थी वो यहाँ पर मौजूद है।
ٹھیک ہے, بیان کیا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا, اور ازواج محترات رفاع حاجت کے لیے صرف رات ہی کے وقت نکلتی تھی اور المناسک کے میدان میں جاتی تھی. اس وقت گھروں میں بیت الخلا نہیں تھی. ایک مرتبہ سودا بنت جمع رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے باہر گئی, تو ان کا قد لمبا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا. اس وقت وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. کہاں بیٹھے ہوئے تھے بھائی صاحب؟ مجلس میں, لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, اکیلے نہیں تھے. جی 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 جی. ہاں, تو انہوں نے کہا سودا میں نے آپ کو پہچان لیا. انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ وہ پردے کے لیے حکم نازل ہونے کے بڑے متمنی تھے, یعنی وہ چاہتے تھے کہ بھئی پردہ نازل ہو جائے. اس لیے اس نے سودا کو کہا کہ اے سودا میں نے تجھے پہچان لیا, تم مجھ سے چھپ نہیں سکتی. بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں رونے کا کہاں ہے سر؟ میں نے بولا تھا رونے کا مجھے دیکھنا ہے, روتے ہوئے گئی. میں نے آپ کو کہا کہ میں 3 حدیثیں دکھاؤں گا, تو 1 بائی 1 اگر آپ دیکھ لیں گے سکون کے ساتھ تو یہ تو بڑی مہربانی ہو جائے گی. اس میں تو نہیں ہے, اور مجلس میں کوئی بیت میں الخلا کرتا بھی نہیں ہے. اس میں یہ ہے نا, ایک منٹ, وہ آ رہی تھی بس ٹوائلٹ کی طرف سے, تو وہ بس دیکھ لیا. اچھا میں نے کتنی حدیثیں دینے کو کہا ہے تمہیں اویس؟ 3 ایک دیکھا ہوں, 2 باقی ہے. تو اب کیا تم تب تک رک جاؤ گے جب تک میں 3 مکمل کر لوں؟ بالکل. ہاں پلیز میوٹ کر لے اپنے آپ کو, تھینک یو. دیکھیں اس حدیث سے 3 باتیں ثابت ہوئی جو میں نے پہلے بولی. نمبر 1, عمر اصرار کر رہا تھا کہ پردے کی آیت منگاؤ, اور بار بار نبی کو بولتا تھا, تو یہ اصرار عمر کا تھا, ایک چیز. دوسری, جس وقت سودا گھر سے باہر گئی ہے اس وقت جو ہے وہ بے پردہ تھی, اور وہ رفاع حاجت کے لیے یعنی کہ بیت الخلا کے لیے المناسک کے میدان میں جاتی تھی رات کے وقت. اور یہ عمر بیٹھا ہوا تھا مجلس میں لوگوں کے درمیان, اور وہاں بیٹھے ہوئے یہ آدمی محمد صاحب کی بیوی اور مسلمانوں کی ماں کو کہتا ہے کہ اے سودا میں نے تجھے پہچان لیا, تم مجھ سے چھپ نہیں سکتی. یعنی کہ بھری محفل میں ایک ایسی عورت کو ٹوکتا ہے یہ آدمی جو بیت الخلا کرنے کے لیے جا رہی ہے. عورت کے لیے بیت الخلا کرنے کا جو مقام ہے وہ بہت شرمندگی کا مقام ہے, بہت چھپ چھپا کر کے جاتی ہے چپ چاپ سے. لیکن ایسی عورت کو جو رات میں چھپ کر کے اسی پرپس سے جا رہی ہے کہ کوئی اسے دیکھے نہ اور پہچانے نہ, اور کسی کو پتا نہ چلے کہ وہ بیت الخلا کے لیے جا رہی ہے, یہ آدمی مجلس میں بیٹھ کر کے اس کو ٹوک رہا ہے, تو یہ اس سے بڑی ضلالت والی بات کیا ہوگی؟ لیکن ہمارے مومن بھائی کو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے. ایک چیز. اب دوسری حدیث پہ چلتے ہیں صاحب. دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی 4795. اس کے اندر بھی یہی بات آتی ہے عائشہ سے کہ سودا جو ہے رسول اللہ کی وائف باہر گئی نیچر کال کے لیے, جبکہ it was made obligatory for all the Muslim to observe the veil, جبکہ ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا. she had a large frame, وہ بڑی لمبی چوڑی تھی, and everybody who know her before could recognize her, اور جس نے اس کو پہلے دیکھا تھا, جو پہلے جانتا تھا اس کو آسانی سے پہچان لیتا تھا. So Umar bin Khattab saw her and said, عمر نے اس کو دیکھا اور کہا, او سودا by Allah you cannot hide yourself from us, تو ہم سے خود کو چھپا نہیں سکتی. So think of a way by which you should not be recognized on going out, تو ایسا راستہ اختیار کر جس سے ہم تجھے پہچان نہ سکیں. سودا returned while Allah's messenger was in my house. یہ کون کہہ رہی ہے؟ عائشہ, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ حضرت عائشہ کے گھر میں رسول اللہ تھے اور گوشت کی جو ہے ٹکڑا چبا رہے تھے, تو وہ بھی اس حدیث میں آگے آ جائے گا. Taking his supper and a bone covered with meat was in his hand. ایک ہڈی جس پہ جو گوشت والی ہڈی تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھی. She entered and said, وہ داخل ہو کر کہنے لگی, O Allah's messenger, I went out to answer the call of the nature and Umar said to me so and so. اے اللہ کے نبی میں باہر گئی تھی قضاء حاجت کے لیے اور عمر نے مجھے ایسا ایسا کہا. Then Allah inspired him, the prophet, and when the state of inspiration was over and the bone was still in his hand as he had not put it down, he said, Soda, you women have been allowed to go out for your needs. جبکہ نبی کے ہاتھ میں ابھی وہ گوشت والی ہڈی تھی, اللہ کی انسپریشن نبی کے اوپر آ گئی کہ بھئی اپنی بیویوں کو کہہ دو کہ جب بھی باہر اپنی ضرورت سے جائیں تو پردہ کر کے جائیں. سب یہ دوسری حدیث ہے, یہاں بھی یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے. اب تیسری حدیث پہ چلتے ہیں.
جو کہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5237 ہے. Narrated Aisha, اس میں بھی عائشہ روایت کرتی ہے. Once Sauda bint Jama went out at night for some need, and Umar saw her and recognized her. He said to her, "By Allah, O Sauda, you cannot hide yourself from us." So she returned to the Prophet and mentioned that to him while he was sitting in my dwelling, taking his supper and holding a bone covered with the meat in his hand. Then the divine inspiration was revealed to him, and when that state was over, the Prophet was saying, "O women, you have been allowed by Allah to go out for your needs." یہ آیت نازل ہوئی اور جب رسول اللہ کے اوپر وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تم کو اجازت ہے باہر جانے کی اپنی ضرورت کے لیے. تو آپ میرے سے کیا چاہتے ہو؟ میں اس حدیث میں آپ کو اور کیا دکھاؤں میرے بھائی؟ کون سا ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جو ان حدیثوں میں موجود نہیں ہوئے یا ایسا تو نہیں نا میرا اس کے لیے میں اس کے لیے آپ سے مجھے لگا کہ اس نے مجھے چھیڑا، میں کسی کے ساتھ میں اس کے لیے آپ سے سوال کر چکا ہوں. کیا کرے گی؟ میں اس کے لیے آپ سے سوال کر چکا ہوں. جواب لے لو، جواب لے لو. میں اس کے لیے آپ سے سوال کر چکا ہوں. اس موقع پر اس پورے کانٹیکس میں آپ اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو رکھیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کی بہن اور بیٹی اچھلتے ہوئے، فدکتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے، کھیلتے کودتے آ کر کے آپ کو یہ بتائے گی کہ روتے ہوئے آ کر کے آپ کو بتائے گی؟ روتے ہوئے بتائے گی. تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو کہاں رو رہی ہے اور کہاں یہ کر رہی ہے؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ آپ کی جو بہن بیٹی ہے، امی بھائی ایک سیکنڈ، جس آدمی کی آنکھیں بند ہے بھائی صاحب کتنی بھی کوشش کر لو یہ نہیں کھولنے والا، آنکھیں بند ہیں. نہیں صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی ماں بہن بیٹی جو ہے ان کی غیرت ان کی امی سودا سے زیادہ ہے. ان کی امی سودا ان سے بھی کم غیرت مند ہے اس کی ماں بہن بیٹی سے بھی. اس کی ماں بہن بیٹی روتے ہوئے آئے گی لیکن سودا ہنستے ہوئے آئی ہے. اس کی ماں بہن بیٹی جو تھی وہ تو روتے ہوئے آئے گی، وہ اس کے لیے ایگری کر رہا ہے، لیکن سودا ہنستے ہوئے آئی یہ اس کے لیے ایگری نہیں کر رہا ہے کہ سودا ہنستے ہوئے آئی ہوگی. اس کی ماں جو ہے یا اس کی بہن جو ہے یا اس کی بیٹی جو ہے، کیونکہ وہ روتے ہوئے آ سکتی ہے لیکن سودا روتے ہوئے نہیں آئے گی، وہ تو ہنستے ہوئے آئے گی. کہہ رہے یہ کتنا اچھا کام کر دیا صاحب، میرے کو چھیڑ کے بھیجا ہے. ایسا آپ کا دوست میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، وہ بھی پیار سے. ارے بھائی اس کو چھیڑنا ہی کہتے ہیں. ابھی تیرے ابھی آپ کی امی اگر راستے سے گزر رہی ہوں گی نا نقاب کے اندر اور کوئی ان پہ طنز کس دے گا نا تو اس کو چھیڑنا ہی کہا جائے گا. طنز نہیں، کیا کہو گے؟ سمجھانا کہنا ہوگا، سمجھانا کہنا ہوگا. یہ سب اس نے یہ روک کے کہا. ارے بھائی مجھے اور سمجھانا یہ بتا دو مجھے آپ کہ سمجھانے کے لیے کیا کہا جائے کہ بہن رکو ذرا تھوڑا پردہ کر کے جائیے، یا یہ کہے گا کہ او سودا میں نے آپ کو تجھے پہچان لیا. اس میں الفاظ کیا ہیں ان پہ دھیان دو ذرا. وہ بھی 10 لوگوں میں بیٹھ کر مجلس میں بیٹھ کے، یعنی چوراہے پہ جیسے ہم جیسے لفنگے چوراہے پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ بھی کبھی لفنگا گیری کرتے تھے تو چوراہے پہ بیٹھ جاتے تھے، آنے جانے والی لڑکیوں کو تاڑتے تھے. ارے ہم نے تو یہ سب دن دیکھ رکھے ہیں بھائی. مجلس بولو 10 لوگ مت بولو نہ تو پھر 10 آدمی گن کے بتانا. ہاں مجلسی صحیح. ارے بھائی پتہ نہیں یہ کہاں جلیبیاں بنایا جا رہا ہے یار، اور اتنی دیر سے سمیر بھائی جلیبیاں کھائے جا رہے ہیں یار، الٹی سیدھی جلیبی بنایا جا رہا ہے. میں یار جلیبی اتنی مہنگائی کے دور میں مل رہی ہے تو کھانا ہے. آپ ہی کھلا دو مجھے جلیبی کچھ، بولیے آپ ہی لوگ. نہیں ہمارے پاس اویس بھائی ہمارے پاس ٹٹی ہے حضور کی، وہ کھاؤ گے؟ نہیں میاں بی بھائی نہیں سر، غلط بات ہے. آپ یہ کر رہے ہیں. نہیں ہمیں غلط بات نہیں بولنی ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہمیں بس ان کو سمجھا دینا، سمجھ میں آنا نہ آنا وہ ان کی مرضی ہے. دیکھو اویس بھائی بات ایسی ہے، آپ ایک ذہین انسان ہیں، ایک انٹلیکچوئل انسان ہیں. اب تک جتنی بات چیت آپ سے ہوئی ہے، ہمارا کام ہے چیزیں آپ کے سامنے رکھنا، آپ کو بتانا. ماننا یا نہ ماننا یا کس طریقے سے سمجھنا یا جان بوجھ کر کے اندھے بنے رہنا یہ آپ کی چوائس ہے. ہم آپ کو زبردستی آپ سے قبول نہیں کروا سکتے. وہ آپ کی اچھائی، آپ کی انسانیت، سر آپ کی اچھائی، آپ کی انسانیت اور آپ کا دل اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد کس حالت اور کس نوعیت میں نبی کے پاس پہنچی ہوگی. یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کا دل جانتا ہے. مگر پھر بھی اگر آپ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی حدیث میں مجھے یہ چیز دکھاؤ، اور اگر حدیث میں یہ چیز نہیں ہے تو میں اس کو نہیں مانوں گا، تو میرے بھائی قرآن میں اور حدیث میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر اور کہاں باندھ رہے ہیں، اور پھر آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے
कैसे रुकू करना है, कैसे सजदा करना है, ये भी हदीस और कुरान में नहीं है, मगर आप उसको करते हो, आप उसको करते हो बिना हदीसों में हुए, तो आपको वो टकराती भी नहीं छोड़ ना वो देना सब बात, चाहिए। टकराती नहीं ना वो सब बात। ये भी नहीं समीर टकरा रही भाई, है। समीर भाई, समीर साहब, इनको वो हदीस दिखा दीजिए ना जिसमें वो पैखाना हुजूर पाक का खाने के लिए दो लोग दौड़ते हैं। अगर हाँ, अगर वो ये लाइव आ मान गया ले, तो मैं भी खा लूंगा, मैं भी खा लूंगा। अरे देखिए मैंने कहा ना, हाँ, अरे समीर साहब, खा लूंगा, सामने वाले की मैं खा तो बात लूंगा। समझ रहा हूँ ना कहाँ तक जा रही है। जी समीर जी साहब, जी, अब क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल। अच्छा भाई, लेकिन आप एक वो बात बोलने बताइए, को, अभी अभी आप कह रहे हैं, एक मिनट, अभी आप कह रहे हैं कि आप नबी का पाखाना खा लेंगे, समझिएगा इस बात हाँ को। कुरान कर और लेंगे। हदीस की कौन सी आयत और कौन सी हदीस आपको ये इजाजत देती है कि आप नजासत खाएं? मैं क्या बोला, अगर वो अभी आए और मुझे बोले तो, नहीं तो अभी हाँ तो तो मुझे मैंने पता तभी तो बोला, ये मैंने बेवकूफाना, तभी तो, ये एक बेवकूफाना मिनट, बात आप एक वो मिनट बोले हैं प्यारे ना, भाई, वो अवैस भाई, बेवकूफाना सवाल मुझसे पूछे हैं। अवैस भाई, अगर नबी अभी वो आकर लाइव आपको नहीं है। बोले, हाँ अवैस हाँ, भाई, आकर बोले तो अवैस बिल्कुल, भाई, तो हदीस में हो जाएगा। अच्छा आकर एक बार, एक बोलेंगे दो, तो हो जाएगा। हाँ एक बार और बोल दिया, एक दो बार और बोल दो ये बात, मुझे सुनाई नहीं दिया अभी तक। अगर वो आकर मुझे बोले हाँ, तो मैं खा लूंगा, जी इसलिए जी। क्योंकि फिर वो हदीस में हो जाएगा ना। अभी तो आप अच्छा वही अभी, मुझसे अभी भी मुझे सुनाई नहीं दिया, बोलने एक में कोई दो, इजाजत एक, नहीं। अच्छा अभी भी मुझे सुनाई नहीं दिया, एक दो बार और बोल दो ये बात। 3 बार बोल दिया सर। तो फिर जब पहले एक बार बोल दिया था और मैंने सुन लिया था, उसके बाद रुक जाना था ना, 4 बार बोलने की जरूरत नहीं थी ना, मैं जवाब दे रहा था ना उसके बाद आपको। आप ही तो बोले सर कि फिर रिपीट करो। मैं जवाब दे रहा हूं अब उसका आपको। दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि नबी आकर के अगर मुझे कहे मेरा पखाना खा लो तो मैं खा लूंगा, तो आप ये सोचिए कि उस वक्त नबी का कहना भी तो कुरान और हदीस के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा, क्योंकि कुरान और हदीस ने आपको मना किया नजासत खाने के लिए, फिर आप कैसे खा लेंगे? बताइए कैसे खा लेंगे आप, जब आपको जब आपको कुरान और हदीस ने मना किया है? भाई भागना क्यों था, जवाब तो देकर जाना था। जमीर साहब, उसकी नज्म, इससे मेरी बात हो चुकी है पहले। इससे मेरी बात हो ये तो चुकी हद है, हो गई। तो मुझे पता है कि कितना गिरा हुआ इंसान है ये, कहाँ तक जा सकता है ये। आप ये जलेबियों पे जलेबी जलेबी, अरे भाई अपनी, नहीं नहीं, अब इससे आपने मैं पूछा। मेरा वो तरीका ही नहीं है मियाँ भी, एक्स मुस्लिम मियाँ बीवी साहब, मैं हंस के माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, मैं हंस आपको के रोक हंस रहा के। हूँ, लेकिन सर मेरा वो तरीका ही नहीं है। मैं इन लोगों को उसी मकाम पे ले जाकर के जलील करता हूँ जहां ये सबसे ज्यादा इज्जत वाला समझते हैं अपने आप को। अभी ये कह रहा था जी कि वो आ गया कुरान और हूँ हदीस सर, से अब टकरा रही मुझे है, मैं मुझे कैसे मान भागने लूं? का। अभी कुरान और हदीस से टकराने वाला हुक्म अगर नबी देगा तो ये मान लेगा। सोच देखो आप इनकी, कैसे मान लोगे ओवेश, जब कुरान और हदीस ने आपको नजस खाने से मना किया है और नबी आपको आपका कहा करके गए कि मेरी नजासत खा लो, तो कैसे खा लोगे जब कुरान और हदीस मना कर रही है आपको? वो आकर बोलेंगे तब ना, तो फिर तो वो बोलेंगे ही नहीं ना। हाँ तो भाई मेरे, वो बोलेंगे नहीं इसलिए तुम खाओगे नहीं, कि कुरान और हदीस ने बोला है ना खाने के लिए इसलिए नहीं खाओगे, सवाल यही तो है। जी जी हाँ, तो बोलेंगे ही जी नहीं हाँ ना। क्या? अच्छा बोलेंगे नहीं इसलिए नहीं खाओगे, कुरान हदीस ने मना किया इसलिए कोई इसलिए ना खाने की कोई बात नहीं आपके नजदीक, है ना? कुरान हदीस बोलते रहे, कोई जी दिक्कत नहीं। जी जी। माशाल्लाह अब वो माशाल्लाह। बोलेंगे तो फिर अभी ये कुरान में हो आदमी, जाएगा वो बात। एक मिनट अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। अभी ये आदमी कैसे देखो बोल रहा था जी कि वो तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कुरान के साथ और फलाह के साथ और ढिमका के साथ, तो लिहाजा मैं नहीं उसको मानूंगा। अब इसने कुरान और हदीस को उठा के डाल दिया बस के नीचे, अब कह रहा नबी आके बोलेगा तो कुरान हदीस भी जाए तेल लेने, मैं तो मानूंगा उसकी बात, नबी की खा लूंगा टट्टी नबी की, है ना? ये है साहब इन मुसलमानों का ब्रेन, इस तरीके से फंक्शन होता है। अब आप एडिटर अपनी साहब आंखों से से कहो देख कि रहे भाई हैं। इसका शॉर्ट बनाए। जी सुनील साहब। यार किस तरीके से तुम्हारा ब्रेन यार ये तुम्हें इजाजत दे देता है कि तुम ऐसी गंदी बात सोच भी लो यार अवैस साहब। मतलब मुझे ताज्जुब होता है यार अब मुसलमानों के ऊपर। भाई मुझे नबी तो क्या, मुझे अगर कोई सच्चा परमात्मा भी है ना, ईश्वर बनाने वाला जो खालिक का कायनात का मालिक है असल, वो भी आकर के कह देना कि तेरी गिजा मैंने टट्टी बनाई है तुम टट्टी खाओ, मैं कहूंगा मैं नहीं मानता तुझे, पर मैं टट्टी नहीं खाऊंगा। और तुम पता नहीं नबी को क्या समझ करके बैठे हो, कहते हो आकर के नबी बोलेंगे न टट्टी खा लो मेरी, तो तुम उसकी टट्टी खा लोगे। यार कैसे इंसान हो यार, ये किधर अल्लाह है से भाई बड़ा तुम्हारा दर्जा ले ब्रेन, लिया ब्रेन इसने। किधर है?
समीर साहब, ब्रेक इसने मिला अल्लाह से भी बड़ा मर्तबा दे दिया, क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि नहीं करना है ये काम, और ये कह रहा है कि नबी कहेगा तो मैं कर लूंगा। अल्लाह से वो बड़ा बोलेंगे मर्तबा ही सर तब इसने ना। नबी को दे दिया। सर, हेलो हेलो हेलो, एसके सर, आवाज आ रही है? जी जी एक्स मुस्लिम में अभी आ भी रही है। सर, देखिए एस अवैध के साहब जी जैसे एस के लोगों सही को लगा। हमको थैंक्स कहना चाहिए। अवैध साहब जैसे सच्चे लोग, देखिए वो सही है या गलत है वो बात की बात है। अवैध साहब जैसे सच्चे लोगों को हम थैंक्स कहेंगे कि वो जो बिलीव पर है, वो उस बिलीव को वो सही सही बताते कि हम ये बिलीव पर है, वो छुपा नहीं रहे हैं, हमें तो थैंक्स कहना। अब आप बोलेंगे कि मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल डालता हूँ मैं, आप डीजल क्यों डालते? तो भाई अपनी अपनी गाड़ियां हैं, लेकिन वो जब एक्सेप्ट करते हैं कि हम डीजल वाले हैं, तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ने क्या कहा है, इस पर अगर कोई मुस्लिम बिलीव करता है तो क्या अल्लाह ने उसके पास आकर कहा है? नहीं ना, अल्लाह ने ये कहा है, ये उसको नबी से पता चला। नबी ने कहा है कि अल्लाह कह रहा है, बिल्कुल। इन लोगों ने मान लिया, और वो नबी कोई ऐसा बात कहेगा। नहीं बोलेंगे